So my dear students, this is going to be my second video on transformation, and as many of my students they have complained that I should make video in Hindi too. So आज से मैं हिंदी में भी आपको पूरा समझाऊंगी, यानी मेरा जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आप समझ पाएंगे. तो टुडे आई हैव टेकन द टॉपिक दैट इज इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. Transformation means to change from one grammatical form to another without changing or without altering the meaning of the sentence. Okay. So today I have taken two topics, that is simple and compound sentences. So we will see, हम देखेंगे कि कैसे हम simple से compound में और compound से simple sentence में change करते हैं. ठीक है. तो before we get to know about how we can change from simple to compound and compound to simple, we must know about the sentence structure of simple sentence and compound sentence first. Okay, so let's understand first what is a simple sentence. Simple sentence, as I have written the definition of simple sentence, you can see a simple sentence has only one subject and only one predicate which has only one finite verb. So a simple sentence has only one subject and one predicate with one finite verb. Example, Tom is playing football. Rani is playing with doll. So here we can see that only one finite verb we have, that is playing, is playing. So in both these two sentences, in दोनों sentences में हमारे पास जो है दो फाइनाइट वर्ब है, यानी एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब. नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे नो द मीनिंग ऑफ फाइनाइट वर्ब, बट मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स यू कैन से दैट दे डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फाइनाइट वर्ब. सो फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और टेंस से अग्री करता है. इसका मतलब हुआ कि आपका जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आपका वर्ब भी बिहेव करेगा. इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल. इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, योर वर्ब इज गोइंग टू बिहेव सिंगुलर. इफ योर like the number of the subject is more, like if I say guavas are sweet, so guavas we see it is plural in number. So what we'll do, that verb will also change. We will use are with guavas. Same way, if we say a guava is a sweet fruit, so a guava, we are talking about only one guava. So verb will also be here singular. Okay. So हमने देखा कि अब टेंस देख ले, टेंस से कैसे बदलता है. कभी जब पास्ट टेंस का होगा तो आपका वर्ब प्ले से प्लेड हो गया. अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो इज प्लेइंग, आर प्लेइंग या प्लेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो टेंस से भी जो है वो वर्ब बदलता रहता है. तो टेंस के पर्सन नंबर और टेंस, यानी सब्जेक्ट, पर्सन नंबर और टेंस से जैसे जैसे चेंज होगा आपका वर्ब भी वैसे वैसे चेंज होगा. इसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब. ओके. अच्छा, now we are not talking about non-finite verb. Non-finite verb is opposite to finite verb. इसका मतलब हुआ कि जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और टेंस से प्रभावित न हो उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. और आपको पता है कि तीन नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. दे आर जेरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल. एंड मेरे सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप सारे वीडियोस को देख लीजिएगा. Now let's understand this thing, that is what is a simple sentence. So simple sentence has only one subject and only one predicate and which has only one finite verb. Now आपको पता है कि जहां से verb शुरू होते हैं वहीं से हमारा predicate भी शुरू हो जाता है. अब there is a question, many students they can't understand what is a clause and what is a sentence. There is a big differences between these two according to them. But actually clause क्या होता है? Clause is also, it can be called group of words with subject and verb, and sentence is also with
group of words with subject and verb, then what is the difference between these two? बहुत से बच्चे क्लॉज और सेंटेंस में अंतर नहीं ढूंढ पाते क्योंकि दोनों में आपका सब्जेक्ट और वर्ब होता है. क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब है और आपका सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है. द थिंग इज दैट क्लॉज, इसको हिंदी में उपवाक्य कहते हैं. नाउ द उपवाक्य मीन्स क्या होता है? कुछ छोटे छोटे उपवाक्य मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बनाता है. समझ में आ रहा है? तो स्मॉल clauses makes big sentences, you can say. So that is clause. Also collection of some words with subject and verb. Sentence also collection of some words with subject and verb. But the thing is that clause can be called a part of a big sentence. Okay, so many clauses together form a big sentence, you can say. Okay, that we will learn later on. We will actually not later on, I have taught you simple sentence में जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज से मिलकर बना होता है. एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है. है ना? सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो मेन क्लॉज के ऊपर आश्रित होता है. उसी तरह कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? दोनों क्लॉजेस इंपॉर्टेंस रखते हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ओके, सो यहाँ पे मैं अभी वो सब छोड़ दीजिए. अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब हो, एक प्रेडिकेट हो और एक फाइनाइट हो. ठीक है, जहां से आपका वर्ब शुरू हो रहा है वहीं से हमारा प्रेडिकेट शुरू हो जाता है. नाउ ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर. अभी चलिए देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको भी मैं आपको लिख के बता दूं. Now let's see what is a compound sentence. The structure of a compound sentence is that there should be two independent clauses which can be combined with a coordinate conjunction. Okay, so two independent clauses, remember, at least two independent clauses combined with a coordinate conjunctions. Now we'll talk about coordinate conjunction. First, let's talk about two independent clauses. अब अगर हम बात करें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है जिसको कि हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मींस क्लॉज क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ब कंबाइंड, सब्जेक्ट वर्ब कंबाइंड. अब यहां पे देखो कि टॉम इज प्लेइंग फुटबॉल, Rani is playing with a doll. So here we see that subject verb object, subject verb, there is no object but preposition का object है यहाँ पे. अब इसमें देखो Tom is playing football. Tom आपका subject हो गया, is playing यहाँ तक आपका verb हो गया, football आपका object हो गया. लेकिन इस वाले सेंटेंस में हम देखते हैं कि Rani is playing, ये रानी सब्जेक्ट हो गया, इज प्लेइंग वर्ब हो गया, उसके बाद एक प्रेपोजिशन है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट न होकर हमारे पास प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अ डॉल. क्योंकि याद रखिए प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ एक नाउन या प्रोनाउन को लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो डॉल है. तो हमें अभी इस बात पे नहीं पढ़ना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. सो हियर वी कैन सी दैट वी हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस which are joined together by a coordinate conjunction. Now what is a coordinate conjunction? So first I will add with coordinate conjunction and then I'll show you what is a coordinate conjunction. So what we'll do that Tom is playing football and here I'm writing and. मैंने and लिख दिया and Rani is playing with a doll. So अब ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस. नाउ इट हैज बिकम अ कंपाउंड सेंटेंस विद टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विच आर जॉइंड टुगेदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड. सो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बन गए जो कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं. सो टॉम इज प्लेइंग फुटबॉल, रानी इज प्लेइंग विद अ डॉल. तो हमने क्या अभी समझा कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वन फाइनाइट वर्ब, वन सब्जेक्ट, वन वर्ब and that verb would be finite verb. Compound sentence का structure होता है two independent clauses
with a coordinating conjunction which add them together. अब जो है देखो, जब हम किसी भी सेंटेंस को किसी भी क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज या सेंटेंस जो भी कह लें, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा जोड़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अभी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर दूं तो आपको पता चलेगा। हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि दो क्लॉजेस को हमको जोड़ना है। यहाँ पे दो मतलब एक सेंटेंस में दो वर्ड्स को नहीं जोड़ना है। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूं। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूं कि टॉम, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूं अगर मैं लिखती हूं कि टॉम एंड रानी इज प्लेइंग, तो ये जो एंड दो यहाँ पे वर्ड्स को जोड़ रहा है, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, और ये सिंपल सेंटेंस ही बनेगा क्योंकि अलग अलग नहीं जोड़ रहा है। हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो दो है लेकिन हमारा प्रेडिकेट एक ही है। जबकि जब हम कंपाउंड सेंटेंस से जोड़ते हैं तो हमारे पास दो क्लॉज होने चाहिए, यानी सब्जेक्ट वर्ब, और उसको हम एंड से जोड़ते तभी कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि टॉम इज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरह यहाँ पे सब्जेक्ट भी है दूसरे सेंटेंस में और यहाँ वर्ब भी है, और डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट ना होके प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है लेकिन है तो ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों को एंड जोड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे तो दोनों क्लॉजेस में सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए, और तभी वो जोड़ेगा और तभी वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अंडरस्टैंड? सो द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इज देयर शुड बी टू क्लॉजेस, two independent clauses which are not depending on each other, and then we will use this coordinating conjunction and. So there are so many conjunctions, बहुत सारे कंजंक्शन है। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही कॉमन हो गया है अभी, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। बाकी तो और भी कंजंक्शंस है लेकिन इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला है फैन बॉय, ये है फैन बॉय। याद रखिए कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है। आपको ये फैन बॉय याद रखना है, यानी फैन से एफ से आपका हो गया फॉर, ए से हो गया आपका एंड, एन से हो गया आपका नॉर, बी से हो गया आपका बट, ओ से हो गया आपका और वाई से हो गया आपका येट। ठीक है, इसको कहते हैं फैन बॉयज, यानी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो फैन बॉय के नाम से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी है जो आइदर और, नाइदर, नॉर वगैरह, तो उसमें आप जो है जब कंपाउंड सेंटेंसेस वाला मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको सारे कंजंक्शंस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैं स्ट्रक्चर बता रही थी। अब हम देखेंगे कि कैसे, हाउ वी कैन चेंज फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके, अभी जो फर्स्ट रूल है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज V1 प्लस ING और परफेक्ट पार्टिसिपल दैट इज हैविंग प्लस V3, तो अगर आपके सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय आपको क्या करना है कि आपको दो कंपाउंड सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो उस सिंपल सेंटेंस से आपको दो क्लॉज बनाना पड़ेगा, है ना, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाना पड़ेगा और उसको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे
तो आपको ध्यान रखना है कि एंड, बट और फॉर, ये तीन कंजंक्शन ऐसे हैं जो इस तरह के सेंटेंस को जोड़ने में काम आएगा, जिसमें सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ हो. Let me tell you in English too that if your simple sentence contains present participle or perfect participle, you must change them into compound sentence by using coordinating conjunction and, so and for. Okay, so these are the three conjunctions. For means, for means it shows reason in Hindi. क्योंकि फॉर मतलब लिए नहीं है, लिए आपका प्रेपोजिशन हो जाता है. फॉर क्योंकि होता है. जब आपके फॉर के बाद कोई नाउन आ जाता है तो वो प्रेपोजिशन हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर का मतलब होता है क्योंकि, और वो जो होता है एक कंजंक्शन होता है, प्रेपोजिशन नहीं होता है. सो रिमेम्बर कि आपका जो पहला रूल मैंने बताया दैट इज कि सिंपल, आपका जो सिंपल सेंटेंस है उसको कंपाउंड में चेंज करना होता है. तो सिंपल सेंटेंस में इफ सिंपल सेंटेंस इज मेड ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी हैविंग प्लस V1 और हैविंग, सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ing और हैविंग प्लस V3 हो, तो आपको कंपाउंड बनाते समय एंड, so and for, these three conjunctions you can use. So let's see how we can change from simple to compound sentences. So I've taken first example. The beggar being hungry stole a cake from a shop. The beggar being hungry stole a cake from a shop. यानी भिखारी भूखा होने के कारण एक केक उसने दुकान से चुराई. Now अभी ये जो सेंटेंस है, आपने अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंपल सेंटेंसेस के 8 तरीके होते हैं, उसमें एक तरीका था, देयर वाज वन वे टू चेंज फ्रॉम by using 2 or more sentences to simple sentence by using nominative absolute. Nominative absolute में मैंने आपको बताया था कि पहले आपका सब्जेक्ट जो होता है वो स्वतंत्र हो जाता है, उसके बाद हम उसको पार्टिसिपल लगा के जोड़ते हैं, और ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सेंटेंस, जो आप अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा आपको. सो द बेगर बीइंग हंग्री स्टोल अ केक फ्रॉम अ शॉप. आई हैव टेकन दिस सेंटेंस. नाउ पहले हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, कैसे हम इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने जा रहे हैं. फर्स्ट वी नीड टू सी which is the subject and which is the predicate. पहले हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग कर लेंगे. ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट मिलके एक सेंटेंस बनेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सब्जेक्ट द बेगर और बीइंग हंग्री, इस फ्रेज को छोड़ देते हैं. स्टोल अ केक फ्रॉम अ शॉप, ये हमारा यहां से वर्ब शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लेके द बेगर स्टोल अ केक फ्रॉम अ शॉप, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया. ठीक है, अब बचा हमारे पास दिस वन, बीइंग हंग्री. ओके, नाउ लेट्स सी कि हम इसका क्या करते हैं. अब यहां पे जो बीइंग हंग्री फ्रेज है, इसको हमको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करना है. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करने के लिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर हम बोलेंगे तो क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही है, मतलब एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना है. तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, बेगर है, तो बेगर को हम यहां पे लिखेंगे दोबारा, द बेगर ठीक है, द बेगर हमने लिख लिया. अब हमें एक फाइनाइट वर्ब की जरूरत है, तो बीइंग हंग्री, कौन हंग्री था, बेगर हंग्री था, तो बेगर को लिखा. अब यहाँ पे बीइंग को हम वॉस में बदल दे रहे हैं. ठीक है, बीइंग को हमने यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब वॉस में बदल दिया. ठीक है, क्योंकि बीइंग क्या होता है,
देखो बी का रूप ही बीइंग होता है, बी से निकलता है, बी है आपका बी, बी से इज, एम, आर, वॉज, वर, बी से ही इज, एम, आर, वॉज, वर निकलता है। तो सेंटेंस चूंकि हमारा पास्ट टेंस में है, स्टोल, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसकी जगह वॉज यूज किया। ओके, सो द बेगर वॉज हंग्री, ये हमारा दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। वी हैव मेड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। द बेगर स्टोल अ केक फ्रॉम अ शॉप, द बेगर वॉज हंग्री। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ अब इस दो सेंटेंस को हम इधर ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी पहले इसको लिख सकते हैं, इसको बाद में, इसको पहले, इसको बाद में, हम दो तरीके से लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन टू वेज, आइदर वी कैन राइट द फर्स्ट सेंटेंस इन द बिगिनिंग और द सेकेंड वन। सो अगर हम इस तरह लिखते हैं, द बेगर वॉज हंग्री एंड लिख देते हैं इसको, ठीक है। द बेगर वॉज हंग्री एंड, दोबारा हम इसको द बेगर नहीं लिखेंगे, बिकॉज वंस वी इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट वी डोंट नीड टू राइट द सब्जेक्ट, यानी नाउन को दोबारा नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, द बेगर वॉज हंग्री एंड ही स्टोल अ केक फ्रॉम अ शॉप, ठीक है। इसको एंड लगा के हम कह सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, द बेगर वॉज हंग्री। अब एंड की जगह अगर हम इसको यहाँ पे सो लिखते हैं तो ये हो जाएगा, इट वुड बी द बेगर वॉज हंग्री सो ही स्टोल अ केक फ्रॉम अ शॉप। ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया हमारा। या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, द बेगर, ही को हटा के पहले हम बेगर लिख देंगे, द बेगर स्टोल अ केक फ्रॉम अ शॉप। अब यहां पे पहले हम फॉर लिखेंगे, उसके बाद ही लिख देंगे, क्योंकि एक बार अगर हम नाउन लिखेंगे तो सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन लिखना जरूरी है। अगर फर्स्ट सेंटेंस में आप प्रोनाउन लिख रहे हैं तो सेकंड में आपको नाउन। तो यहाँ पे देखिए, द बेगर स्टोल अ केक फ्रॉम अ शॉप फॉर ही वॉज हंग्री। यहाँ पे फॉर का मतलब क्योंकि, तो हमारा तीनों कंजंक्शन का यूज करके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके वी हैव एडेड दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। अब हमारा द बेगर बीइंग हंग्री स्टोल अ केक फ्रॉम अ शॉप को हमने द बेगर स्टोल अ केक फ्रॉम अ शॉप फॉर ही वॉज हंग्री। यहाँ पे ये रीजन बता रहा है, क्योंकि बेगर ने केक चुराया था इसलिए, क्योंकि वो भूखा था, या बेगर भूखा था सो लगा के इसलिए उसने केक चुराया, या बेगर भूखा था और उसने केक चुराया। तो हमारे तीन तरीके हो गए, तीन कंजंक्शन जिसमें एंड, सो और फॉर लगा के हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड रूल। If you have these two conjunctions in your simple sentence, that is besides, in addition to, if you have these two conjunctions in your simple sentence, remember while changing into compound sentences we will use a coordinating conjunction, that is not only but also. मैंने फैन बॉयज के अतिरिक्त और भी बताया था, आपके कंजंक्शन पेयर्स में आते हैं, आइदर और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक्सेट्रा। तो अगर आपके सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स या इन एडिशन टू, बिसाइड्स इन हिंदी के बजाय इन एडिशन टू के अतिरिक्त, तो अगर सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स एंड इन एडिशन टू आ रहा है, तो when we change it into compound sentences we will use not only but also. अभी मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं। So I have taken this example. See, beside being a dramatist, यहाँ पे I forgot to write S. Besides being a dramatist, Tom was a writer too. आपको अगर याद होगा तो ये रूल है, नाउन या जरंड के पहले प्रेपोजिशन का यूज,
बेटा हर चीज डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह से सिंथेसिस पढ़े हो। अगर आप सिंथेसिस अच्छे से पढ़े हो तो ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत अच्छे से कर लोगे। सिंथेसिस में एक रूल है मेरा, आप देख लीजिएगा। उस रूल में मेरे सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सारे वीडियोस में एक रूल है कि नाउन या जेरेंट के पहले प्रेपोजिशन का यूज करके दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। उसके मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं। वो सारे 4 वीडियोस को आप एक के बाद एक देखिएगा। तो यहाँ पे जो रूल है, बिसाइड्स बीइंग अ ड्रामेटिस्ट टॉम वाज अ राइटर टू। तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है, वाज, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, वी विल यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। सो व्हाट विल डू, फर्स्ट वी नीड टू राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, टॉम, ठीक है। और उसके बाद आपका वर्ब वाज, टॉम वाज, ये मैंने लिख लिया है। एंड हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ड्रामेटिस्ट और दूसरा राइटर। तो पहले वाले ऑप्शन के साथ हम नॉट ओनली लिखेंगे और दूसरे वाले ऑप्शन के साथ हम, ऑप्शन मतलब क्या, उसकी क्वालिटी, इसके बाद हम बट ऑल्सो लिखेंगे। तो इट वुड बी टॉम वॉज नॉट ओनली अ ड्रामेटिस्ट बट ऑल्सो अ राइटर, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। जब हम इस तरह का नॉट ओनली बट ऑल्सो इस तरह का जो है मतलब बड़ा कंजंक्शन यूज करते हैं तो हमारे पास एक ही वर्ब होगा। और इन नॉट ओनली बट ऑल्सो ये बड़ा सा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करता है। Now Tom was not only a dramatist but also a writer. Now it has become a compound sentence connecting these 2 sentences. Okay. So beside being a dramatist, Tom was a writer too. Now अभी दूसरा देखते हैं, in addition to का example. Now take in second example, in addition to, by using in addition to in simple sentence. In addition to playing football, Tom plays cricket too. यहाँ पे भी ये सिंपल सेंटेंस है, दिस इज ऑल्सो सिंपल सेंटेंस एंड वी हैव वन फाइनाइट वर्ब दैट इज प्लेस। एंड इन एडिशन टू जो है वो आपका फ्रेज है, एक कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो फ्रेज में है, लंबा है। इन एडिशन टू ये एक पूरा जो है प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन को हम इस जेरेंट के पहले यूज कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो वीडियो बना है नाउन या जेरेंट के पहले प्रेपोजिशन का यूज, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो इन एडिशन टू प्लेइंग फुटबॉल, टॉम प्लेज क्रिकेट टू। इस तरह का अगर सिंपल सेंटेंस में आपका इस प्रपोजिशन को लेके अगर आपका कोई सिंपल सेंटेंस बना है तो आप उसको जब चेंज करोगे कंपाउंड में तो आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। सेम वे में आपको लगाना है। सो फर्स्ट आपको क्या लिखना है, टॉम, देन वर्ब, सब्जेक्ट, देन वर्ब, टॉम प्लेज, ये हमने लिख लिया। उसके बाद 2 आपका है क्वालिटी टॉम की, कौन सा, प्लेइंग फुटबॉल एंड प्लेज क्रिकेट टू। So what we'll do, Tom plays not only football, अब पहले दूसरे के साथ but also cricket, ठीक है। ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। याद रखिएगा जब हम इस तरह का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये मिलाकर आपका एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करता है। ओके, सो देयर आर सो मेनी रूल्स। अभी मैंने आज सिर्फ 2 रूल्स आपको बताया है, और भी रूल्स है जिसको हम सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का 3rd वीडियो लेके आऊंगी। उसमें वी विल डिस्कस कि कैसे सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में हम और भी कई तरीकों को यूज करके मतलब जोड़ सकते हैं, सिंपल से कंपाउंड बना सकते हैं।
Till then, goodbye.